Hi guys, welcome back to my channel Tarot with Aisha. Hope you all are doing well. I'm a tarot reader, numerologist and a candle healer. If you are new to my channel and haven't yet subscribed to it, do it right away so that you do not miss upon any of the content. आज का हमारा टॉपिक है राखी स्पेशल, रक्षाबंधन स्पेशल, that is going to be a pick a card reading to know a bond about your brother and sister, how is your bond, what you need to change and how you perceive each other. So this is going to be our overall reading. Before we start with the reading, here's a disclaimer. This is going to be a collective reading, so take whatever resonates and leave the rest. If you want personalized readings, numerological consultation or healings, you can reach out to me on my Instagram or Facebook pages. Links to these are mentioned in the description below. Here you can see there are 3 piles. If you want, pause the video, select one pile that you are most drawn towards. Pile number 1, you can either select with the pile you are most drawn towards, or you can also select with the crystal that you are most drawn towards. In pile number 1 I have citrine. In pile number 2 it has tourmaline. Pile number 3 has green aventurine. So select any of the crystal or the pile that you are most drawn towards and then move to the description below and have a watch to your reading, to your pile directly at that minute. चलिए शुरू करते हैं pile number 1 के साथ. 4 of Wands is showing me that how your sibling perceives you. This tells me that your sibling finds you more of a family person, जो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट करता है, लोगों के हेल्प करता है एंड एक बहुत ही होमली फीलिंग आती है आपके सिबलिंग को. व्हेन द पर्सन सीज यू, you are a true attraction, a true family member for your sibling. Next, Wheel of Fortune is something that your sibling is learning from you. So your brother or sister knows that you are a hard worker. आप बहुत ज़्यादा efforts डालते हो किसी भी चीज़ में to achieve that thing. कहीं ना कहीं आपको देखकर आप जिस तरीके से किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को या किसी टास्क को कंप्लीट कर रहे हो, उस चीज़ को देखकर वो ये सीख रहे हैं कि उनको चीज़ों को कैसे हैंडल करना है. इन सब चीज़ों के लिए लाइक डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो या कोई इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हो, तो उस चीज़ को कैसे हैंडल करना है ये आपका भाई या बहन आपसे सीख रहा है, आपसे सीखना चाहता है. सो व्हेनेवर देयर इज़ something that you see कि the person is trying to learn from you, do not put that person in an awkward situation. Instead, help the person to learn from you. 6 of Pentacles is how you perceive your sibling, your brother or sister. आपका भाई या बहन बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर का है. हो सकता है हद से ज़्यादा बाहर जाकर, मतलब खुद को प्रायोरिटी ना देकर या खुद के फैमिली को प्रायोरिटी ना देकर शायद वो किसी दूसरों की मदद के लिए दौड़ते हुए जाता है, जो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए. बट दिस इज़ ऑल्सो अ गुड पार्ट अबाउट योर सिबलिंग दैट द पर्सन हैज़ दिस हेल्पिंग नेचर. बहुत जेन्युइनली योर सिबलिंग रन्स टू हेल्प पीपल हुएवर आर इन नीड एंड दिस इज़ वॉट दे एन्जॉय, इज़ वॉट आई सी. एंड दिस इज़ हाउ यू परसीव देम. बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए उनके एंड पर. वॉट यू आर लर्निंग फ्रॉम योर ब्रदर और सिस्टर इज़ नाइट ऑफ कप्स. आप सोच रहे हो, आप चाहते हो कि आप कहीं ना कहीं एक ठहराव जो उनमें है, एक पेशेंस लेवल या किसी चीज़ को पहले अच्छी तरीके से एनालाइज करना एंड देन उस पर सोच समझ कर किसी डिसीजन पर पहुंचना इज़ समथिंग योर सिबलिंग डज एंड यू आर लर्निंग दिस और यू आर वांटिंग टू लर्न दिस फ्रॉम योर सिबलिंग. 8 of Cups is showing your relationship with your sibling. Somewhere मुझे लग रहा है कि at the moment there are certain issues or there are difference of opinions in this relationship, जहाँ पर आप
कोई एक चीज़ करना चाह रहे हो एंड मे बी आपको आपके सिबलिंग से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या फिर इट कुड बी वाइस वर्सा, बट यू नीड टू कीप इन माइंड कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, मतभेद चल रहा है आपके रिलेशनशिप में विथ योर सिबलिंग। हो सकता है आइदर वन ऑफ यू आर अवॉइडिंग सर्टन सिचुएशन, मतलब उस चीज़ पर रिएक्ट नहीं कर रहे हो, कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहे हो, या यू हैव मूव्ड आउट ऑफ अ सर्टन फेज जहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था जस्ट टू अवॉइड सर्टन थिंग, इज व्हाट आई सी योर करंट रिलेशनशिप होल्ड्स। द वर्ल्ड कार्ड इज समथिंग दैट यू नीड टू चेंज इन दिस रिलेशनशिप। द वर्ल्ड कार्ड मुझे बता रहा है कि आपको कहीं ना कहीं ये चेंज ज़रूर लाना पड़ेगा विद दिस 8 ऑफ कप्स। जो इश्यूज चल रहे हैं यू नीड टू सॉर्ट दिस आउट राइट नाउ, बिकॉज विद दिस द वर्ल्ड कार्ड आई डेफिनेटली सी कि दिस रक्षाबंधन यू नीड टू चेंज, यू नीड टू लेट गो ऑफ जो भी इश्यूज थे। कहीं ना कहीं यू नीड टू रियलाइज दैट यू बोथ आर अ फैमिली, you both need each other's support in any part of life. You may need each other's support, and you both need to be very strong and need to be pillars, supporters of each other. This is what I see for this relationship for pile number 1. Let's see what guidance we have for each of you and for this relationship. This is the guidance that I have for you, which says change is happening, so be prepared to move physically and spiritually. As I said, you need to make the change, as you need to bring the change, and that change is somewhere I see is going to be soon, within next 2 to 3 months is what I intuitively feel. So you need to be ready for this change. You need to accept the good coming up in your way. This is the guidance for your sibling. Call in the pure white light, which means your sibling is going to somewhere make an effort to bridge the gap, to bridge the differences between you people, and you need to have an open heart, you need to have a big heart to accept it and mend the gaps in between. इसी के साथ a fiery climax approaches is the guidance for this relationship. So as I said, somewhere down the line, very soon, कहीं ना कहीं आपके जो भी issues है that is going to soon come to an end, and the relationship is going to go to a next level, is going to be stronger, the bond is going to get stronger. So this Raksha Bandhan, do not forget to start it with a small celebration. Good luck to pile number 1. Moving on to pile number 2. Starting with Ace of Wands, this is how your sibling perceive you, this is how your brother or sister sees you. कहीं ना कहीं आपके भाई या बहन को लगता है you are a good supporter of the family. जहाँ पर भी issues आए, कोई चीज़ों के लिए नया step लेना पड़ा या कुछ चीज़ों को let go करके, if you had to start again, you have to start a new journey, you can do it very firmly once you decide to do so, is what your sibling feels about you. Your sibling wants to learn how money management, career management, and how you are being so focused on certain things is what your sibling wants to learn from you, and is trying their best. आपके भाई या बहन को कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, यू आर समवन जो किसी भी नई चीज़ को स्टार्ट करो, अगर एक प्लान के साथ स्टार्ट करो, एक फोकस के साथ स्टार्ट करो, तो यू मेक श्योर कि वो चीज़ प्रॉपरली एंड हो, उसके एंड गोल तक यू मेक श्योर दैट इट रीचेज इट्स गोल. सो दिस इज़ समथिंग योर सिबलिंग लाइक्स अबाउट यू or cherishes about you, because this is something they want to learn, because मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है उनमें there can be this lack of confidence या lack of motivation. जो भी एक टास्क स्टार्ट करते हैं वो एंड तक नहीं ले जा पाते, कहीं ना कहीं in between your sibling might give up upon the task, but कहीं ना कहीं मुझे दिखता है कि this is your plus point कि आप उस टास्क को अगर स्टार्ट करो तो you make sure कि उसका जो भी एंड प्लान था, यू नो मैटर वॉट, जो भी स्ट्रगल हो, जो भी हो, यू स्टिक टू द प्लान एंड यू execute the task till the end is what I see. And this is an inspiration for your sibling.
Whereas Page of Wands and the Hanged Man is how you perceive your sibling and what you are learning from your sibling. हो सकता है आपके भाई या बहन is younger to you in teenage or in early 20s is something I see. वो बहुत ज़्यादा focused है, passionate है किसी चीज़ को लेके. For most of you I feel कि आपके भाई या बहन आर्टिस्टिक फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है. हो सकता है उनको फैमिली इतना सपोर्ट नहीं करती हो, बट कहीं ना कहीं यू आर देयर टू सपोर्ट देम इन दिस ड्रीम ऑफ देम. एंड कहीं ना कहीं आपको लगता है कि योर सिबलिंग इज स्ट्रेस्ड अबाउट दिस थिंग बिकॉज उनको रिक्वायर्ड फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रहा है. बट वॉट एल्स आई कैन सी इज़ दैट आप हो उनको सपोर्ट करने के लिए. यू आर ready to stand by them no matter what to help them achieve their goals is what I see. So this is a good part about you, and with these cards in picture I would advise you that you stay strong and stand by with your sibling because ये कहीं ना कहीं उनके growth के लिए help करेगा. As I can see, as I said, हो सकता है they are in their early 20s, so this is the age जहाँ पे कोई चीज़ों को ईज़िली अगर आप सीख सकते हो तो सीख जाओगे, अगर आप गिव अप करोगे तो ईज़िली गिव अप कर सकता है. सो दिस इज़ दैट एज यू नीड टू सपोर्ट योर ब्रदर और सिस्टर एट दिस एज. एंड जो भी उनका ओवर थिंकिंग है या जो भी उनको लग रहा है कि वो नहीं कर पाएंगे ड्यू टू लैक ऑफ सपोर्ट, उनको कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन एंड वो सपोर्ट आपको दिखाना पड़ेगा. बिकॉज उसी के बाद अगर वो इस टेंशन को साइड में रखेंगे तभी ही जाके वो अपने गोल्स पर फोकस कर पाएंगे. तो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर देयर स्टैंडिंग फॉर देम. मूविंग ऑन, what is the relationship that you share and what you need to change in this relationship. So 10 of cups over here is showing me that आप बहुत अच्छा एक फैमिली बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करते हो with your brother or your sister, and this bond is something greater than the bond that you share with your parents or any of your family member. आप दोनों siblings के साथ साथ you are best of friends. कुछ भी हो, कोई भी छोटी बात हो, कुछ भी मन में चल रहा हो, you openly share it with each other, and this is a great part about your relationship. With this page of pentacles I see you don't need to change anything in this relationship. Instead एक दूसरे को सपोर्ट करना है अपने गोल्स के लिए, अपने करियर के लिए. आप दोनों में से किसी एक को डेफिनेटली आई सी हैज़ बिग गोल्स इन लाइफ टू अचीव, विच इज़ समवेयर दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा उस एक को वो गोल अचीव करने के लिए. सो यू नीड टू बी वेरी कॉन्स्टेंट, very stable and very supportive in this relationship. Let's see what guidance we have for both of you. This is the guidance for you. Open your heart to love and joy, which means जो भी आ रहा है अपने रास्ते, open up your heart so that कहीं ना कहीं जो भी blockages है या आप किसी चीज़ को लेकर टेंस्ड हो, अपने सिबलिंग को लेकर या उनके गोल्स को लेकर या अपने कोई प्रॉब्लम्स को लेकर, यू नीड टू ओपन दैट, यू नीड टू एक्सेप्ट द चेंज बिकॉज आई डेफिनेटली सी द अदर वन हैज़ द एबिलिटी टू गेट इट डन. दिस इज़ द गाइडेंस फॉर योर सिबलिंग. लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री. एज आई सेड, कहीं ना कहीं आपका सिबलिंग बहुत ज़्यादा टेंस्ड है, बहुत ज़्यादा स्टक है इस चीज़ को लेकर कि सपोर्ट मिलेगा या नहीं, गोल्स अचीव कर पाएंगे या नहीं. तो ये चीज़ को रिलीज़ करके इट इज़ द टाइम दैट द पर्सन नीड्स टू सेट देमसेल्फ फ्री. बिकॉज अगर ये चीज़ों को लेकर सोचते बैठेंगे तो गोल्स पर से फोकस हट जाएगा. हाउ टू अचीव इट, हाउ टू ओवरकम द फियर्स इज़ व्हाट दे नीड टू फोकस ऑन. दिस रिलेशनशिप outcome is going to be a win-win situation. So it is advised that आप एक दूसरे को सपोर्ट करो. जो भी चैलेंजेस आते हैं, इश्यूज आते हैं लाइफ में, बी देयर फॉर ईच अदर. एक दूसरे के सेलिब्रेशन में बी अ पार्ट ऑफ इट. व्हेनेवर आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, एक दूसरे को मोटिवेट करते हो, दैट इज़ द मोमेंट वेयर यू बोथ बिकम स्ट्रॉन्गर. एक दूसरे के सपोर्ट के साथ आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो अपने लाइफ में. एंड दिस इज़ व्हाट
is going to lead you to achieve all your goals or fulfill all your wishes. So continue supporting each other and good luck to pile number 2. Pile number 3, आपके ब्रदर या सिस्टर परसीव्स यू कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, आपके मोस्ट ऑफ द डिसीजंस इमोशनली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, इज़ वॉट योर सिबलिंग थिंक अबाउट यू. इवन दे थिंक कि आप इस इमोशनल डिसीजंस लेने की वजह से या बहुत ज़्यादा इमोशनल नेचर के होने की वजह से कभी कभार इतने ज़्यादा लोगों में इन्वॉल्व हो जाते हो कि आप खुद को इग्नोर कर देते हो, खुद के हेल्थ पे इम्पैक्ट होने लगता है. दिस इज़ वॉट योर सिबलिंग थिंक अबाउट यू. समथिंग दैट दे आर लर्निंग फ्रॉम यू और दे वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम यू इज़ कि दूसरों के हेल्प करके, दूसरों को खुश देखकर, हाउ यू बी हैप्पी, दूसरों की मदद करके आपको किस तरीके से खुशी मिलती है. उसी के साथ साथ आप चीज़ों को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हो और उसको अपने सर पर नहीं चढ़ने देते हो, सक्सेस को अपने सर पर नहीं चढ़ने देते हो. दिस इज़ व्हाट योर सिबलिंग थिंक्स अबाउट यू एंड यू हैव दिस गुड क्वालिटी कि आप किसी भी चीज़ में, छोटी सी छोटी चीज़ में अपनी खुशी ढूंढते हो. ये चीज़ आपके ब्रदर या सिस्टर आपके बारे में बहुत ज़्यादा चेरिश करते हैं. दिस इज़ समथिंग दैट दे वांट टू लर्न एंड दे थिंक कि वो इतने कैपेबल नहीं है, या दे सी यू एज एन आइडियल कि कैसे छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए, कैसे खुश रहना चाहिए जो हमारे पास है उन चीज़ों को लेकर. ऑन दी अदर हैंड, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आपके सिबलिंग बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट करते हैं आपको, आपके फैमिली को, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को. हो सकता है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल नेचर के हो आपके सिबलिंग, जो एक जगह पर बहुत ज़्यादा नहीं रुक सकते, एक काम करने में ज़्यादा मन नहीं लगता, हर थोड़े वक्त के बाद उनको चेंज चाहिए होता है हर चीज़ में, स्पेसिफिकली वर्क रिलेटेड. एंड यू थिंक कि आपके सिबलिंग को जो टाइम फैमिली को देना चाहिए या जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो नहीं फुलफ़िल करते हैं. एंड इंस्टेड द पर्सन फ्लाई अवेज एंड स्टे अवेज फ्रॉम द फैमिली. दिस इज़ व्हाट यू थिंक अबाउट योर सिबलिंग. आपको एक चीज़ आपके सिबलिंग के बारे में बहुत अच्छी लगती है. दिस इज़ अबाउट जो भी एक सिचुएशन हो, डिफ़िकल्ट चीज़ें हो, बट कहीं ना कहीं खुद के लिए टाइम निकाल लेना, खुद की चीज़ों को फुलफ़िल करना, खुद के विशेस फुलफ़िल करना, खुद के तरीके से जीना इज़ समथिंग योर सिबलिंग डज एंड यू वांट टू लर्न. दैट इज़ व्हाट आई सी. बिकॉज if your sibling is capable enough to avoid a situation and move out of the situation, which means वो खुद को सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं, इवन फैमिली एंड फ्रेंड्स से भी ज़्यादा खुद की प्रायोरिटी उनके लिए इम्पॉर्टेंट है. और कहीं ना कहीं आप ये सोचते हो कि आपको ऐसे होना चाहिए, आप में ये क्वालिटी होनी चाहिए. बिकॉज जो आप बहुत ज़्यादा इमोशनली सोचते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट करते हो हर चीज़ से, वो एक थोड़ा सा ब्रेक होगा. एंड जो आप हर बार हर चीज़ दूसरों का सोच कर या दूसरों के लिए कर रहे हो, कहीं ना कहीं यू वांट दैट पार्ट विद इन यू, जहाँ पे आप अपने लिए कुछ करो, अपने लिए कुछ अच्छे स्टेप्स ले सको, अपने लिए टाइम निकाल सको. सेल्फ लव, सेल्फ केयर इज़ समथिंग दैट यू आर इन सर्च ऑफ एंड यू वांट टू लर्न फ्रॉम योर सिबलिंग. Let's see how is your relationship and what needs to be changed in this relationship. Knight of Wands is what is your relationship is shown by, and Three of Cups मुझे दिखा रहा है कि क्या changes होना चाहिए. Starting with Knight of Wands, ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आपका relationship बहुत ज़्यादा fiery है, बहुत ज़्यादा reactive है, बहुत ज़्यादा easy decisions ले लेते हो सकता है your brother or sister has one point of view, you have a different point of view, but instead of thinking दोनों के पर्सपेक्टिव से एंड एक पॉइंट पे अग्री करने के बदले आप दोनों बहुत ज़्यादा इस इंटेंशन में आ जाते हो सकता है दिस इज़ बिकॉज योर सिबलिंग इज़ मोर सेल्फ सेंट्रिक देन यू, एंड इसलिए कोई एक होता है आप दोनों में से जो बहुत क्विकली डिसीजन ले लेता है, चीज़ें अपने अकॉर्डिंग करने में निकल पड़ता है.
एंड एक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स नहीं होता है विच इज़ लैकिंग इन दिस रिलेशनशिप एंड विच इज़ देन कवर्ड बाय दी 3 ऑफ कप्स कार्ड, जो मुझे बता रहा है कि you need to have that collaboration or you need to develop that mutual understanding जहाँ पे आप एक दूसरे के पॉइंट को समझे, उसी के साथ साथ एक मिडवे निकाले, एक अग्रीमेंट निकाले कहीं ना कहीं जहाँ पे एट टाइम्स एक दूसरे को आप ज़्यादा सपोर्ट कर पाओगे। एंड जो भी ये गैप है, एक पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंट्रिक है एंड द अदर पर्सन इज़ टू इमोशनल, ये गैप भी तभी ही ब्रिज हो पाएगा। सो यू नीड टू वर्क अपॉन दिस रिलेशनशिप। थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स करो, थोड़ा सा एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करो, इज़ व्हाट आई कैन से। दिस इज़ द गाइडेंस दैट आई हैव फॉर यू। लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। सो एज आई सेड, कहीं ना कहीं योर sibling is self-centric, but you need to find the good part of being self-centric and why being yourself as a priority is important. ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको सीखना पड़ेगा, is what I see. And there is another way. Ask your unicorn to help you find it. And this is for your sibling. This guidance is for your sibling, जहाँ पर as I said पहले भी मैंने बताया, जैसे वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा क्विक डिसीजंस लेते हैं, बिकॉज उनका सिर्फ एक ही फंडा होता है, दैट इज़ मैं, मेरे बारे में, इट शुड बी अबाउट मी एंड इट शुड बी कंफर्टेबल टू मी, इज़ व्हाट इज़ योर सिबलिंग्स फोकस। सो उस चीज़ को उनको ये सीखना पड़ेगा कि कभी कभार कुछ डिसीजंस, कुछ एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड है इन अ फैमिली, इन अ रिलेशनशिप, एंड ये चीज़ उनको भी समझनी पड़ेगी। सो ओवरऑल व्हाट आई सी इज़, इस रिलेशनशिप के लिए कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा जो उनका नेचर है उससे ये सीखना पड़ेगा कि सेल्फ प्रायोरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड उनको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि सेल्फ प्रायोरिटी इम्पॉर्टेंट है, बट एट टाइम्स कहीं ना कहीं कुछ एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत भी पड़ सकती है। एंड यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल इनफ इन टर्म्स में टू कीप अ रिलेशनशिप, टू कीप अ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग एंड टू मेक इट स्ट्रॉन्गर। ओवरऑल रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, विच मीन्स कि मुझे लग रहा है कि आइदर ऑफ यू हैव स्टार्टेड कंसिडरिंग दिस, या मे बी आप ऑलरेडी कोशिश करना स्टार्ट कर दिए हो दूसरे का पर्सपेक्टिव समझने की, एंड दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू, दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू मेक दिस बॉन्ड स्ट्रॉन्गर एंड लॉन्ग लास्टिंग। सो गुड लक to pile number 3. Thank you for watching this video and happy Raksha Bandhan to each